का खालसा बहुत वधिया जी ते बहुत ही सुकूनमय टाइम हुंदा है 6:30 बजे इंडिया का सैटरडे संडे ते ट्यूसडे जदों उड़ीक हुंदी है कि फटाफट पहुंचिए काम सारे काम काज निपटा के ते कुछ काम दी चीज सुनिए ते बस वही करते जी हुणे हुणे मैं पहुंचा है। आई एम श्योर बाकी भी सारे जेडे बिजी होंगे इस टाइम पहुंच जाते हैं। ते शनिवार जी असी पिछले कुछ हफ्तियां तो वीर जसमीत सिंह जी तो सरवण कर रहे हैं जी गुरबाणी विचार। ते अज वीर जी जड़ा श्लोक लिता है वीर जी ने जड़ा साडा श्लोक अज दा विचार दा है कागा करंग डंडोलिया सगला खाया मास। वीर जी अगेन एज बिफोर विचार डूंगी है ते इनू सरल ते स्पष्ट करके आप जी संगत दे मुख रखते हो। ते ओवर टू यू वीर जी, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत हर हर मीठा लगा गुरमीठे बचन कढ़ावे गो सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तम बानी स्यों चित लावे गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज कर आवे गो तहाँ अनहद तुनी बाजै नित बाजै नीचर धार चुआवे गो। धन वाहिगुरु साहिब जी फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खूंडे काग अजय स्वरब ना बाहुड़ो देख बंदे के पाग कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस। कागा चूंड न पिंजरा कागा चूंड न पिंजरा बसै ता उडर जाए जित पिंजरे मेरा शह वसै मास नात दो खाए। जित पिंजरे मेरा शह वसै मास नात दो खाए। भागा वाले आओ फरीद साहब की रसना तो उच्चारण किए हुए 3 श्लोक श्लोक नंबर 90 91 ते 92 इन्हां 3 श्लोकां का पाठ असां सारियां ने हुणे ही रल मिल के सुनिया ते कीता। फरीद साहब इन्हां श्लोकां राही समुची मनुखता नूं की उपदेश बख्शदे पए ने समझण दा विचारन दा यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला और एक बार फिर दोबारा फतेह नाल सांझ पाइए। आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बच्चे नूं
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਨ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੁਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੱਚ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਈ। ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਏ ਆਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਹੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਬਿਨਾ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ
जदों भी कोई सोच इनकलाबी आए, जदों भी कोई सोच क्रांतिकारी आए, मता समझो जिधरों सोच आंदी पई है उसनों खत्म करके जिसनों उस सोच तो प्रॉब्लम है वो टिक के बैठ जाए। गुरु अर्जन साहब की शहादत तो बाद कि टिक के बैठ गए? नहीं ना, क्योंकि गुरु अर्जन साहब का जिहड़ा फलसफा वो तो दुनिया दे विच स्पष्ट है। इस करके अगला स्टैप हुंदा है उस फलसफे दे विच कंफ्यूजन क्रिएट करना, कॉम्प्लीकेशन क्रिएट करना। हुण दूजा कारण है वापरे कि असी गुरबानी नूं, गुरमत नूं पढ़न लई, समझन लई, अपने जीवन दे विच अपनान लई एक रत्ती मात्र भी यतन ना कीता, पर पूरा दा पूरा यतन या ते रहा मत्था टेकन तक, लंगरां तक, धर्म अस्थानां नूं रब दा घर मनन तक, ते नाल नाल बस ए एक साडे जीवन दे विच रहा बस 80 गुरुद्वारे हो आए, साडा काम हो गया। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं समझण दा, ओ मत नूं ग्रहण करन दा असी रत्ती मात्र भी यतन ना कीता। तीजा कारण, जदों असी वैसे ना असी अपने चौगिरदे विच वेखीए, असी देखते हैं कि चौगिरदे दे विच कुछ कहानियां प्रचलित ने, असी ओ कहानियां आप भी अपने गुरु साहब या भगत साहबान नाल जोड़नियां ने। सानू लगता है इस नाल बड़ी वडियाई होंदी है। असी गुरबानी दे शब्दां दे नाल कहानियां जोड़नियां। कबीर साहब दे क्रांतिकारी शब्द पहली करूप गुजात को लखनी, उहदे नाल भी कहानियां जोड़ लितियां कबीर साहब दी वोटी दे नाल। अनेक इहो जे गुरु नानक साहब दे, गुरु अर्जन साहब दे, भगत रविदास दे, भगत नामदेव साहब दे अनेक शब्द जो साडी जिंदगी दे विच क्रांति लेके आंदे पए ने, असीं उन्हां दे नाल कहानियां जोड़नियां। अगला कारण जो कि मैनूं इंज जापदा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण, वो है साडी हों। असीं जिस चीज बारे मेहनत ना कीती होए, जिस चीज बारे सानू रत्ती मात्र भी पता ना हो, पर जदों सानू कोई आके उस चीज बारे पूछे, साडे विच जिगरा नहीं हुंदा कहण दा कि नहीं यह चीज हले मैनू नहीं पता, मैनू कुछ टाइम लगेगा, मैनू खोज करन दे, खोज करके मैं तेनू दस दूं। पर असी ते बड़े वड्डे हुंदे, असी बड़े सियाने आ, इस करके जो मर्जी आके सानू पूछे असी जवाब ते देना ही देना। गुरबानी दे फलसफे बारे, उस टर्म्स बारे, उस प्रोड़ाराद बारे गुरु साहब केड़ी एक दी टेक्निक यूज करते पे ने, उस पठाएं जिंदगी दे विच साल मेहनत नहीं कीती हो, पर जे शब्दां दे श्लोकां दे अर्थ समझना आन बड़ी सौखा है। उदा एक सामने सीधा सीधा अर्थ, सीधी सीधी कहानी पेश कर देनी, ते अगला कारण उहदे नाल एक धंधा भी जुड़दा है जो अज दे श्लोक दे नाल वापरदा पिया। फरीद साहब जेड़ी बड़ी ही क्रांतिकारी विचार साडे सामने रखते पे ने, वो असी समझ ना सके, पर असी कहता कि फरीद साहब कहते पे ने कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मांस। कामा ने की कीता? मेरे शरीर नू बिल्कुल करंग टंडोलिया, टंडोल टंडोल के बिल्कुल नष्ट कर दिता, मेरा सारा मांस खा गए। वैसे जब सारा मांस खा गए कि ये शरीर बचेगा? बट फिर भी कहते पे ने नहीं, अखां बचियां हुई ने। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मांस, कहते ने ए दोए नैना मत छू। फरीद साहब कां नूं कहंदे पए ने, हे कां तू मेरा सारा शरीर ते बर्बाद कर दिता है, पर हुणे एक मैं तेरे अगे एक बेनती करदा पिया, तू मेरी दो अखां ने ना, ए अखां नूं ना तू बर्बाद कर। ए दोए नैना मत छू, क्यों? क्योंकि फिर देखन की आस, मैनू रब नूं मिलन दी, रब नूं वेखन दी आस। कहानी बनानी सौखी सी, सिर्फ कहानी नहीं बनाई, तस्वीर भी बना दी। जी तस्वीर बड़ी प्रचलित भी हो गई कि फरीद साहब कां नूं वेखदे पे ने, एक उंगली कां वाल है, दो उंगलियां अखां वाल है। पता नहीं केड़ी लैंग्वेज जी कां समझदा होएगा, ते पता नहीं कि कुछ वापर गया। असी फरीद साहब की 500-600 सालां दे विच फरीद साहब सानू की कहंदे पे ने ओ ना समझ सके, पता नहीं केड़ी लैंग्वेज होएगी, कां समझ गया। दूजी चीज कि रब नूं इन्हां बाहरलियां अखां नाल वेखना। वैसे पता है साडे नाल वापरिया कि 2 ना पति पत्नी आपस दे विच बहसदे पए सी, 2 पति पत्नी आपस दे विच बहसदे पए सी, 2 पति पत्नी आपस दे विच बहसदे पए सी। 2 पति पत्नी आपस दे विच बहसदे पए सी, 2 पति पत्नी आपस दे विच बहसदे पए सी।
बैसते बैसते गल निकलती है ਉਹਦੀ पत्नी दी जी एक दोस्त ਉਹਦੀ सहेली ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। हम तो डूबे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे। साडी बस ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਮ ਤੋਂ ਡੂਬੇ ਸਨਮ तुमको भी ले डूबेंगे, ते दूजी चीज साडे अंदर हों इन्ना प्रबल है कि असी मनन नूं तैयार नहीं कि असी जिंदगी दे 30 40 50 60 70 साल कोई चीज गलत करते हुए गुजार दिते। जे बच्चे नूं कहो ना बच्चे तो स्कूल जांदा पे तेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं होंदी पई, ते अगों बच्चा कहे कि कोई नहीं कदी ना कदी कर लांगा, ते मां प्यो जवाब देंगे पता कितनी मेहनत नाल तैनूं असी स्कूल दे विच पाए। अगों बच्चा भी जवाब एक सवाल कर ले कि तुहानूं जपजी साहब पढ़दे 40 50 साल हो गए ने, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਜੀਬ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਰ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬੜੇ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਲਿਵਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਮਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ। ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟੀ, ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਇਤਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਹੌਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ क्रांतिकारी सोच साडे सामने रखते पे ने। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर एक गुरमुख का जीवन ते एक मनमुख के जीवन की बड़ी खुली डुली व्याख्या की ते अनेक एग्जाम्पल्स दे के मनुखता नूं समझाया कि भलिया पुरखा जे तू गुरमुख वाली जिंदगी जिएगा ते तेरा की हाल होना है, ते तू मनमुख वाली जिंदगी जिएगा तेरा की हाल होना है। उधर कई एग्जाम्पल्स वरतने, मिसाल दे तौर पर जदों गुरमुख की जिंदगी का जिक्र करना है, हंस की उदाहरण दी, हंस की खुराक की उदाहरण दी। हंसा हीरा मोती चुगना, हंस की खुराक हीरे मोती है। सिख जे तू अपनी सुरती की खुराक गुरमत के हीरे मोती रखेगा, तू ए डुअलिटी छड़ेगा, तू हंस वाली जिंदगी जींदा पे। बगले की उदाहरण वरती, बगला वो जिहड़ा अंदरों होर बाहरों होर है। बाहरों बिल्कुल चिट्टा है, बाहरों समाधि ला के बैठा है, क्यों हंस वांग दिखना चाहता है, पर उसकी समाधि के पिछे कारण की है? डडियां मच्छियां पकड़ना। भलिया पुरखा जे तू भी अंदरों होर ते बाहरों होर है ना, तेरी हालत बगले वाली है। तीजी एग्जाम्पल कां दी दित्ती। कां वो जिहड़ा अंदरों भी काला ते बाहरों कर्म भी माड़े करदा पिया।
गुरु साहब बड़ी प्यारी एग्जाम्पल नाल समझाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कलर केरी छपड़ी कौआ मल मलना है। कलर वाली छपड़ी ते कौआ कां मल मल के नांदे। हुण कलर वाली छपड़ी दा की भाव है? जिहड़े बंदियां दा धरती दे नाल वाह है, नाता है, वो भली भांति समझते हैं कुछ इहो जिहियां धरती हुंदी है जिहड़ी फर्टाइल हुंदी है, जिहदे अंदर पानी जीर जांदा है, पानी समा जांदा है, उधरों फसल उधरों खेती करनी बड़ी सौखी। कुछ जिस तरह धरती नूं कहंदे ने खालस धरती, जिहड़ी धरती दे विच कोई मिडल मैन नहीं, सीधा जिहड़ा उस धरती दा मालक है उहदे कंट्रोल दे विच। एक किस्म दी धरती हुंदी है जिसनूं कहंदे पे ने कलराठी धरती। उस कलर वाली धरती दे अंदर पानी जीरदा नहीं है, पानी समांदा नहीं है, पानी वड अलग धरती दे उत्ते खड़ा है, उहदे अंदर समांदा नहीं। हुण कुदरती गल है, जिधर समाएगा नहीं उधर फसल ते हो नहीं सकती। ते दूजी चीज, जिस जगह ते पानी खड़ा रहेगा उधर बदबू दा होना, मक्खी मच्छरां दा होना यह भी लाजमी है, ते ओ जगह बीमारी का कारण भी बनती है। गुरु साहब कहंदे पे ने कलर केरी छपड़ी कौआ मल मलना है। ओ वाली संगत दा जिक्र है, जिस संगत करदियां उस सच दा संग करदियां जे मेरा मन इहो जी कलराठी धरती बन चुका है, जे सच दी विचारधारा अंदर पहुंचती नहीं पई, ए कारण है मेरे जिंदगी दे विच वो बीमारी आ चुकी है, जिस बीमारी करके मैं आप भी परेशान ते अपने चौगिरदे नूं भी परेशान करता पाया। कां प्रतीक है विकार दा, कां प्रतीक है अंदरों भी काला ते बाहरों भी काला। कां प्रतीक है ओ मनुखी सोच दा जिहदे उत्ते सच दी संगत दा कोई असर नहीं पैंदा पिया। क्यों? क्योंकि अंदरों भी काला बाहरों भी काला। कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए, मन तन मैला अवगुनी चिंज भरी गंदी है। ओ मन तू भी मैला ते तन तू भी मैला, भाव उसकी सोच भी माड़ी ते कर्म भी माड़े। फरीद साहब अज ए एग्जाम्पल वरतते पे ने, श्लोक नंबर 90 दे अंदर कहंदे पे ने, जिधरों टॉपिक दी उस सेट दी आरंभता हुंदी पई है, फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खूंडे काग, अजय सो रब ना बाहुड़े देख बंदे के बाद। असी फलसफे नूं, फरीद साहब दे इस फलसफे नूं, इन्हां टर्म्स नूं गुरबानी चीज समझना है। कां दा अर्थ अंदरों भी काला बाहरों भी काला। कां प्रतीक है विकारी सोच दा। पिंजर दा की भाव है? वैसे साडा ना एक अजीब जो जिधरों आरंभता की थी, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। बानी बिल्कुल स्पष्ट सानू समझांदी पई है, तन ना तपाए तनूर च, बालन हड ना बाल। गुरबानी का फलसफा बिल्कुल स्पष्ट कि तू तन नू कष्ट दिते रब्बी मिलाप हासिल नहीं कर सकता। पर फिर भी असी फरीद साहब नू कई साल जंगल दे विच तप करदे विखाया। कहानी बनानी बड़ी सौखी। कई साल जंगल दे विच तप करके फरीद साहब मुड़ जदों अपने घर आए, हुण कुदरती गल है कई साल जंगल दे विच रहे ते इस करके केसां दे विच बालां दे विच अड़े पै गए ने। हुण उन्हां दी माता, जो कहानीकार ने दस्सिया, उन्हां दी माता जदों उन्हां दे केस वांगी हुण अड़े पए होए ने ते फरीद साहब पीड़ा महसूस करदे ने। हुण पीड़ा महसूस करदे पए ने ते फरीद साहब दी माता फरीद साहब नूं कहंदी है कि जे तुसी अड़ियां दे नाल इतनी पीड़ा महसूस करदे पए हो, जो तुसी जंगल दे विच इन्ने साल रहे, तप कीता, पेड़ां दे पत्तियां नूं भरू भरू के खाया, उन्हां नूं कितनी कष्ट होई होगी। कमाल दी गल। कहानीकार दे मुताबिक तप कीता फरीद साहब ने ते अंतरजामता माता कोल आ गई। फरीद साहब कहंदे ने नहीं, यह गल है तो मैं फिर हुण तप करन जांदा पिया। हुण ऐतकी मैं की करना है कि मैं पेड़ां दे पत्ते भी नहीं खाने, मैं बस वो लकड़ नूं रोटी समझ के खाई जाना। कि यह मनुखी शरीर लकड़ खा सकता है? पर असी किहड़े श्लोक वरतो कीती इस कहानी नूं जस्टिफाई करन लई? फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्हां खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। जिन्हां ने भी चोपड़ी हुई खा दी वो बड़े दुख सहणगे। जे इसनूं इस तरह ही मन लीए फिर साडे वर्गों मैनूं लगदा कोई भी नहीं बच सकता।
ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਜਿੱਧਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੈਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਰਹਾ, ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜੋ ਟਰਮਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਛੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਆਣਾ ਉਹ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਿੰਜਰ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਰਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਵਾਲੀ, ਭੂਤ ਵਾਲੀ, ਸਕੈਲੇਟਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਠ। ਕੀ ਕਰ? ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਾਜ, ਸੁਬਹਾ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਧਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਣੀ। ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਜੋ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿੰਜਰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਖਰੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਇਧਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ। ਸੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
क्यों नहीं कबूल करता पाया? क्योंकि कलर केरी छपड़ी कौआ मलमल ना है होया कि मेरा तन सुक गया। हरियावल किवें आनी सी मेरे माधो जी? सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। हुण उस सुके जीवन दे विच भी हरियावल आ जाने सी, खेड़ा आ जाना सी, पर क्योंकि वो उस संगत का असर कबूल नहीं कर सकिया विकारां दे कारण, इस करके होया कि मेरा तन सुक गया, भाव मेरा जीवन एक चलदी फिरदी लाश। हुण कोई काम जीवन दे विच प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। नतीजा पिंजर थिया मेरा जीवन। ए जो मेरे को असल अखां चाहिए सी, ए जो मैनू असल जुबान चाहिए सी, जो मैनू दिमाग की वरतों करनी सीखनी सी, जिसनों कहंदे ने दसम द्वार, कि तू अक्ल नाल काम करने सीख गया, तेनू विवेक बुद्ध बारे पता लग गया कि केड़ी चीज ठीक है ते केड़ी गलत। हुण वो चीज रहे नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा जीवन एक चलती फिरदी लाश बन चुकी है। क्यों? असीं ते कहंदे आ ना कि असीं मनुखा जून दे विच, गुरु साहब नहीं मनते। गुरु साहब कहंदे पे ने जे तू असल विच देखना चाहता ना क्राइटेरिया कि तू मनुखा जून विच है कि नहीं, गुरु साहब कहंदे पे ने जिना सतगुर पुरख ना सेवे, शब्द ना कीतो विचार। शब्द ना कीतो विचार का भाव कथा करना नहीं, शब्द ना कीतो विचार का भाव जिसने शब्द दे नाल अपने जीवन दी विचार नहीं, जिसने शब्द दे नाल सतगुर भाव सच्चे ज्ञान दे नाल अपने आप नू अपने चौगिरदे नू समझण दी कोशिश ना की। जिना सतगुर पुरख ना सेवे, शब्द ना कीतो विचार। गुरु साहब की कहोगे उन्हां बारे? गुरु साहब कहंदे ने कोई मानस जो ना आखे, मनुख नहीं ने। अच्छा की ने? कहंदे ने पशु हैं। पशु कहता, चलो कोई गल नहीं, पशु भी ते किसी चीज दे काम आ जांदा है। गुरु साहब कहंदे पे नहीं अगे पढ़, ओए मानस जो ना आखियन, पशु ढोर मरिया होया पशु कहता है। जिन्हां ने अपने जीवन की विचार नहीं की, वो की करते पे ने समझण की कोशिश ना की, उन्होंने मरिया होया पशु कहता। चलो कोई गल नहीं, मरे हुए पशु भी काम आ जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं इत्थे ना रुक, होर अगे पढ़, ओए मानस जोन ना आखियन, पशु ढोर गवार। ओ जीवन एक गवार मूर्ख मरे हुए पशु दे वांगे जो बस किसी जोगा। कावां ने मेरा ओ हाल कर दिता है फरीदा, तन सुक्का, मेरा जीवन प्रोडक्टिव नहीं रहा। पिंजर थिया मेरे कोल, हुण अखां नहीं रही, जो जुबान नहीं रही, वो कन नहीं रहे कि मैं सच सुन सका। तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां, तलियां कहंदे ने जिवें हथ दियां तलियां ते पैर दियां तलियां, उस पाम नूं। हुण गुरु साहब केड़े हथ ते केड़े पैर दा जिक्र करदे पे? गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट करदे ने, पै के चरण कर भाव के लोएन सुरत करे, नानक कहे सियानी है एवं कंत मिलावा होए। पै के चरण, केड़े पैर? पै दे निर्मल पौ दे। निर्मल पौ दा की मतलब? एक पल दे इत्थे मैं रुका। असीं निता प्रति पढ़दे हां निर्भौ, एक पासे ए भी पढ़दे हां निर्भौ जपै सगल पौ मिटे, कि असीं निर्भौ नूं तां जपदे हां क्योंकि असीं आप भी निर्भौ बनना है। पर दूजे पासे असीं ए भी पढ़दे हां निर्मल पौ पाया हर गुण गाया है। एक पासे कहंदे पे निर्भौ बनना है, एक पासे कहंदे पे निर्मल पौ पाया, उस पौ दे नाल लफ्ज जोड़ दिता है निर्मल मैल तू रह ते और जिंदगी दे विच लैके आना। निर्मल पौ मन लो मुहब्बत दी एक शिखर। जदों मनुख किसी मनुख नाल, किसी नुक्ते नाल, किसी फलसफे नाल दिलों मुहब्बत करे ना, उस प्यारे नूं अपनियां शर्तां नहीं मनाइयां जांदियां, प्यारे दी शर्तां मनियां जांदियां। जदों साडे जीवन दे विच ओ निर्मल पौ आ गया, फिर असी हर वक्त बहाने रेडी नहीं रखने कि है मैं इस करके नहीं कर पा रहा, बट असी प्यारे दी शर्त मन। जदों ए निर्मल पौ आ गया, इसनों कहंदे पे ने पै के चरण। निर्मल पौ तेरे पैर बनदा, कर भाव के, हाथ तेरा प्रेम दा रूप ले लेन,
लोइन सुरत करे, तेरिया अखां सुरत बन जान। नानक कहे सियानी है इव कंत मिलावा होए, तेरा रब्बी मिलाप कदों हो सकता है? ये बारली पैर, बारली हत्थां, बारली अखां नाल नहीं, पर किदे नाल? पै के चरण निर्मल पौ तेरी जिंदगी बचाए। पै के चरण कर भाव के तेरे हथ प्रेम का रूप ले लेन। लोइन सुरत करे भाव तेरे जीवन दे विच, तेरी सुरती दे विच ज्ञान का चानन आए, ज्ञान का सुरमा आए, तेरे कोल निर्मल पौ होए, तेरे कोल ओ प्यार होए, ताई रब्बी मिलाप हो सकता है। हुण आओ श्लोक ते। फरीदा तन सुक्का, प्रोडक्टिव नहीं रहा मैं, पिंजर थिया, मेरा बॉडी चलती फिरती लाश बन गई है। तलियां खूंडे काग, काग की समझे सी विकार, विकारा ने की तलियां बर्बाद कर। तलियां की ने? पै के चरण कर भाव के। ओ विकार दे कारण मेरी जिंदगी दे विच ना निर्मल पौ रहा ते ना जिंदगी दे विच प्यार रहा। नतीजा की निकलिया? अजे सो रब ना बाहोड़े, देख बंदे के भाग। सीधे अर्थ करांगे ते होएगा कि हजे भी रब तेरे ते नहीं तरसिया, रब ने बाना फड़ी, किहो जे बंदे ते भाग ने। फिर ते दोष रब ते आ गया ना, पर दोष ओ कुदरती नियमावली दा नहीं, दोष रब जी दा नहीं, दोष गुनाह दा नहीं, दोष है साडा। दद्दा है, दोष ना देऊं किससे? दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। हुण यह चीज समझ नहीं पेगी। हुण एक पासे गुरु ग्रंथ साहब दी बानी अनेक थावां ते चंगे भाग ते मंदे भाग दा जिक्र करदी है। चंगे भाग की ने? हरजन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हरजन, जदों मेरा मन और रब जी नाल एकमिक हो गया, हरजन बन गया। हरजन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। शरदा की परिभाषा है नहीं कि जो बोलिया बस अखां मेट दित्तियां वाहिगुरू वाहिगुरू, इनू शरदा नहीं कहते। शरदा की परिभाषा, जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चित ना लाया राम। जिंदगी तू डुअलिटी खत्म होने का भाव है शरदा, उसनों कहते ने कमिटमेंट। हुण जदों कमिटमेंट आ जाएगी, बंदा की करेगा? मेहनत, मेहनत करेगा, उसका नतीजा की निकलेगा? अपने आप कम सफल होंगे। कम सफल होंगे का की मतलब है? भाग वड्डे होने शुरू हो गए। मतलब जिवें जिवें साडी जिंदगी चों डुअलिटी निकली, साडी जिंदगी दे विच कमिटमेंट आया, असीं उद्यमी बने, असीं अपने भाग वड्डे करने शुरू कर दिते, जिसनों कहंदे पए ने हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। बल्कि गुरु साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिता, बड़ भागी तेह जन को जानो जो हर के गुण गाए। वड्डे भागा वाला वही है जिसने और रब्बी नियम नू समझ के अपने आप नू उसदे एकमिक, उसदे अनुसार अपने आप नू ट्यून कर दिता। हुण जे यह चीज स्पष्ट होगी, हुण फिर माड़े भाग की ने? इहदा ऑपोजिट। पर गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने, तेनू ऑपोजिट दसन दी लोड़ नहीं, मैं ही दसदा। जिन हर 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 रस नाम ना पाया, अगे की आंदे? ते भागहीन जम पास। जे रब्बी नियम समझिया ही नहीं, जीवन दे विच डुअलिटी रही, इस करके तेरे सुभाव दे विच आलस रहा, इस करके तू अपने फर्जां दी पहचान ना की, बस ताई ते तू अपने कर्मां करके वड्डे भाग नहीं बना पाया, तेरे माड़े भाग ने। गुरु साहब कहते हैं होर स्पष्ट हो जाए। टॉपिक की अज दा कहां की है? विकार। कित्थे तक पहुंचे असीं? मंदे भाग तक। गुरु साहब कहते हैं आ एक जगह ते मैं तेनों टॉपिक पूरा समझाता। दुर्मत भागहीन मत फीके। पैड़ी मत वाला, चंगे भाग नहीं ने। दुर्मत भागहीन मत फीके। जिंदगी की हालत पता केड़ी है? नाम सुनत आवे मन रोहे। सच नू समझदियां बड़ा इरिटेट होता। दुर्मत भागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रोहे। कौआ काग को अमृत रस पाइए, तृप्ते बिष्ठा खाए मुख गोए। कानू तुसी अगर चंगिया चंगिया चीजां उहदे सामने रख दो ना, उहदे संगे अमृत रख लो, कानू अमृत चंगा नहीं लगना। कौआ काग को अमृत रस पाइए, पर उन्होंने तृप्ति किस नाल होनी है? तृप्ते विष्टा खाए मुख गोए, उन्होंने तो विष्टा ही चंगी लगती है। जदों सानू भी चंगिया चीजां ना फिट बैठन, साडे बहाने हर वक्त रेडी रहन। जदों असीं शुरुआत की सी ना, पहली बोतल तोड़ी, दूजी बोतल तोड़ी, तीजी बोतल तोड़ी,
चौथी बोतल नहीं तोड़ांगी क्योंकि उन्होंने तो मेरा नुकसान नहीं किया, हले भरी हुई है। गुरु साहब कहते पे ने बस ए भागहीन दी निशानी है, ए रब नू ब्लेम ना देई, तै काम चजदा ना कीता, तेरे मन ने यह परवान नहीं किया, वो रब्बी नियम और रब्बी गुणा दी वरखा होंदी पई है, मेरे मन ने उसको एक्सेप्ट करके अपनी बाह उन्होंने फड़ाई नहीं, अजे सो रब ना बाहोड़े हो, देख बंदे के भाग, तू हजे तक अपने जीवन दे विच वो पीड़ा महसूस नहीं करता पे। अगला श्लोक, जिस जगह ते आके पूरा मसला खड़ा होया, मसला की खड़ा होया सी, कामा ने कागा करंग टंडोलिया, पैक कर करके मेरे स्केलेटन नु बर्बाद करता सी। वैसे ना गुरु ग्रंथ साहब दी बानी अंदर अनेक थावां ते इहो जिहा कन्वर्सेशन आया, जिवें काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हां बिरह जाली। हुण किहड़ी लैंग्वेज विच कोयल दे नाल एक कन्वर्सेशन कीता होएगा ते किस लैंग्वेज विच कोयल ने जवाब दिता होएगा, सानू समझाने का तरीका सी। गुरु नानक साहब ने भी एक पब्बर नाल छप्पड़ नाल कन्वर्सेशन करके सानू समझाया ना, पब्बर तू हरे आवला कवला कंचनवन, कह दोखड़े सड़े होए, काली हुई देहोड़ी नानक मैं तन भंग। हुण अगों पब्बर जवाब देंदा पे जाना पानी ना ला। हुण किहड़ी लैंग्वेज विच गल कीती होएगी ते किहड़ी लैंग्वेज विच जवाब दिता होएगा, सानू समझाने का तरीका, पर असीं समझ ना सके, कहानियां जोड़ लित्तियां ते धंधा बना दिता। क्यों साडी कोल, पर समझिए सानू अज तक दस्या गया, फरीद साहब कहते पे ने कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मांस, तुसी मेरा सारा मांस खा बैठे हो, ए दोए नैना मत चो यार, मेरी आंखों पे तरस कर देना, क्योंकि फिर देखन की आस, फिर नू मिलन दी आस। असीं हुण तक समझ चुकिया तां है विकार दा प्रतीक, समझ चुकिया ए मेरा शरीर, ए मांस, ए बाहरली शरीर का जिक्र नहीं हुंदा पिया, समझ चुकिया ओ विकार मेरी सुरत रूपी अखां ते अटैक करदे पए ने, समझ चुकिया कि मेरा ध्यान ते अटैक करदे पए ने, समझ चुकिया उस करके मेरे कोल ना निर्मल भौ है, ना मेरे कोल प्रेम है, ना मेरी सुरती ते ज्ञान दा चानन है, ज्ञान दा सुरमा है। हुण इस करके टॉपिक नूं ही अगे फरीद साहब लेके जांदे पए ने, कागा उन्हां विकारां ने करंग टंडोलिया, ओ मेरे एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे नो, जिस जिस जगह ते मैं कोई प्रोडक्टिव चीज करता पाया सी, हर जगह ते विकार ने अटैक किया, सगला खाया मांस, मैनू बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिता। क्यों? क्योंकि जो मैं काम करता पाया, गुरु साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह स्पष्ट करते हैं ना, सब किछ जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंदप अरफुन ग्रह की नार, जेड़ा बंदा आत्मक तौर पर जींदा है उहदे नाल तुसी डायलॉग कर सकते हो, पर जेड़ा बंदा हर वक्त ही गालां कढदा रहे उहदे नाल डील करना पॉसिबल नहीं है। पर विकारा ने इस ढंग नाल मेरे ते अटैक कर दिता है कि मेरे एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे मेरी सोचने नूं डिस्ट्रॉय कर दिता है। बस मैं केवल डुअलिटी वाली जिंदगी जीता है, मैं अंदरों कुछ हो रहा ते बाहरों कुछ हो रहा। नतीजा की निकलिया, हुण फरीद साहब कां नूं रिक्वेस्ट नहीं करदे पे, पहले ते बाहरलियां अखां दे नाल इस रब नूं देखा नहीं जा सकता। गुरु साहब ने फिर स्पष्ट किया, लोए न लोई डिठ प्यास ना बुझे मुंह कणी, नानक से अखड़ियां बयान, बयान दा भाव होर ने डिफरेंट, नानक से अखड़ियां बयान जिनी दिसंदो मां परी। हुण अखां किहड़ियां ने, उन्हें समझिया पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे, सुरत रूपी अखां नाल मिलाप हो सकदा। फिर फरीद साहब की कहंदे पे ने, फरीद साहब कहंदे पे ने ए दोए नैना, ये वाली जो डुअलिटी थी वो ध्यान नाल समझो। असी खड़े हुए हैं, ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस, कान को कहा जा रहा है कि तू आके मेरी ये आंखों को मत बर्बाद करना, क्योंकि मेरे को रब जी को मिलने की आस है। पर उधर ध्यान ना देखो, उधर छूयो नहीं कह रहे, उधर छूहो की गल चलती। ए दोए, ये दोए क्या है? डुअलिटी। वो डुअलिटी क्या है जो असी हुणे तक पहले श्लोक तू समझदे आंदे पया, जो विकारां दे कर मैं दो जिंदगी जिंदा पया, जो विकारां दे कारण मेरा अंदर प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी है, जो विकारां दे कारण मेरे अंदर निर्मल भाव नहीं है, ये जो डुअलिटी है, ए दोए नैना, ए मेरी सुर दे विच जो डुअलिटी इतनी ज्यादा अटैक कर चुकी सी, पता होया कि मत छूहो, उस डुअलिटी ने मेरी मत को भी टच कर लिया। कानू रिक्वेस्ट नहीं हो रही है कि तू आके मेरिया बाहरलियां अखां नू टच ना करी,
बल्कि कहंदे पे ने ए दोए नैना, ए जो मेरी सुरती दे विच डुअलिटी सी, जो दोगलापन सी, मत छूहो, मेरी मत नू भी टच कर गई है। फिर देखन की आस, इट इज लाइक अ रेटोरिकल क्वेश्चन। यू एक्सपेक्ट तेरा रब्बी मिलाप हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तू काम एक चजदा नहीं करता पया, वो डुअलिटी तेरी मत नू भी टच कर गई है, फिर देखन की आस, इज इट पॉसिबल? रिपीट करा, टॉपिक साडा चलदा पया है कां। कां की सी जेड़ा कां कां करदा रहे, कां की सी विकार, वो साडे जिंदगी दे विच क्यों अटैक करदा पया सी? इस करके करदा पया सी क्योंकि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हुण ओ कां साडे ते अटैक करदा पया सी, उस विकार ने मेरे नू बिल्कुल अंदरूनी तौर ते डिस्ट्रॉय कर दिता। मेरे कोल ना सुरत रूपियां अखां रही, ना पै के चरण रहे, ना वो निर्मल भौ जिंदगी दे विच रहा, ते ना वो प्यार रहा। हुण जदों ये सारियां चीजां नहीं रहियां, इस करके नतीजा की निकलिया? मैं जिंदगी दे विच अनप्रोडक्टिव बन गया, तन सुक गया सी। हुण जदों तन सुक गया सी, मैं फिर भी रब नू ब्लेम करदा पिया सी। फिर गुरु साहब ने समझाया सी, नहीं तेरी खुराक माड़ी सी, दुर्मत भागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रोहे, कौआ काक को अमृत रस पाइए। अमृत तेरे कोल सी, अमृत तेरे अंदर सी, पर तू उसको एक्सेप्ट नहीं करता पिया सी क्योंकि तेरी खुराक की सी। कौआ काक को अमृत रस पाइए, तृप्त विष्ठा खाहे मुख गोए, तेरी खुराक ते विकार बन चुके सी, तेन तो भैड़ियां चीजां ही चंगियां लगियां पईयां सी, इस करके तू भागहीन बन गया सी। बट फिर भी तू ते कहंदा सी मैं रब नू मिलना चाहता। हुण वो विकार ने दूजे श्लोक में आके जदों मैनू पूर्ण तौर ते खोखला कर दिता सी, तां कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, पर फिर भी मैं डुअलिटी नाल जिंदगी जींदा पिया सी, दोगलेपन नाल जिंदगी जींदा पिया सी। ए दोए नैना, मेरी सुरती दे विच ए जिहड़ी दोगलापन सी, जो डुअलिटी सी, मत छूहो, मेरे मत नू भी आके टच कर गई है। फिर देखन की आस, एंड स्टिल आई एक्सपेक्ट मेरा रब्बी मिलाप हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? जदों ये रियलाइज होया, है मैं आज तक की करदा आया, मेरे अपने कम्मा करके मैं और रब्बे मिलाप उस आनंद नू जिंदगी दे विच एंजॉय नहीं कर पा रहा सी। मैं क्या बस हुण टाइम आए जागन दा, हुण उठ फरीदा होने वाला है। उठ फरीदा होएगा तो फिर मेरा पिर नाल भी मिलाप हो जाएगा। एक ना अखान है, जदों भी किसी दा पति अब उस कुछ दिनां लई, कुछ हफ्तियां लई बाहर गया होए, ਉਹਦੀ ना पत्नी दिन गिनदी कि मेरा पति वापस कद आएगा। वो अक्सर दीवारां ते काउंट भी पांदी, पता होंदा जे इतने दिनों बाद आना, तो कट काटे मारदी रहंदी, इतने दिनों बाद पति ने वापस आना। ते अक्सर एक चीज प्रचलित सी, बन रहे थे उत्ते छत ते भी जाके देखदी। एक प्रचलित सी कि जे उत्ते कां बैठा है, वो कां उड़ गया ते अज मेरा पति घर आएगा। प्रचलित सी, अखान सी। गुरु साहब वही चीज यूज करते पे, क्योंकि फिर देखन की आस है ना, रब्बी मिलाप चाहना, इस करके कां नू उड़ना पड़ेगा। कां उड़ेगा ताई ते पति घर आएगा। गुरु साहब कहते पे ने, पंथ निहारे कामणी लोचन भरी ले उसासा। वो जीव स्त्री उस पति मिलाप दी तांग दे विच खड़ी है, पंथ निहारे, रस्ता दिखदी पई है। पंथ निहारे कामणी लोचन भरी ले उसासा, और ना पीजे पग न खिस्से हर दर्शन की आसा। इस करके की कहते पे ने, उडो ना कागा कारे, ओ विकार, ओ कां उड़ जाना यार, तुसी उड़ोगे ताई ता मेरा पति आएगा। उडो ना कागा कारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, तुसी उड़ो ताई ते मैं छेती छेती अपने प्यारे प्रति नाल मिल सकदियां। पंथ निहारे कामणी लोचन भरी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिस्से हर दर्शन की आसा। उडो ना कागा कारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे। है कां तुसी उड़ोगे ताई ता मैं रब्बी मिलाप हासिल कर सकदियां। कां की सी जी? विकार। उड़ाना किसने सी जी? मैं। गुरु साहब कहते पे जे तू मन लिया, फिर पता है तू की बन जाएगा? हों गोसाई दा पहलवानड़ा।
मैं गुर मिल उच्च दुमालड़ा सब होई छिंज इकट्ठियां। हुण मैं वो गुसाई दा पहलवान बन चुकिया। अखीरले श्लोक वाला, मैं गुसाई दा पहलवान बन चुकिया। पता लगे विकारी कां दे कारण मैं परेशान सी, पता लगे कावां दे कारण मेरा रब्बी मिलाप नहीं हो पा रहा सी। जदों कां उड़नगे तां रब्बी मिलाप होएगा। हुण आओ कां नूं चैलेंज करिए। कागा चूंड ना पिंजरा, तू आ गया सी ना, तू मेरे पिंजरे नूं, मेरे बॉडी नूं, मेरी सुरत मत मन बुद्ध नूं, मेरे ध्यान नूं पैक कर करके तू डिस्ट्रॉय करदा पिया सी। हुण मैं गुसाई दा पहलवानड़ा हो चुकिया। किवें हो चुकिया? क्योंकि वो पंज विकार आंदे पे सी। अवर पंच सी, वो पंच सी ते मैं कल्ला सी। अवर पंच हम एक जना, क्यों रखूं घर बार मना। वो पंज करदे की पे सी? मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार देना, पर जवाब दे दिता सी श्री राम नामा उच्चर मना आगे जम दल बिखम गना। और रब्बी नियम दे नाल हुण मैं एक मिक हो गया, मैं पहलवान बन गया ना। हुण विकारां नूं किवें मारने मैनू आ गया। हे कां कागा चूंड ना पिंजरा, बसे तां उड़ जाए। हुण तेरी बस दी गल है ना, उड़ जाओ इधरों। हुण तू मैनू डिस्ट्रॉय नहीं कर सकदा। क्यों? क्योंकि गगन दमामा बाजो, मेरी सुरती दे विच ओ दमामा बज चुके। पर ओ निशाने काओ खेत जो मांडियो, विश्राम इधर दो। खेत जो मांडियो सूरमा, सूरमा वो है जिसने अपने शरीर रूपी खेत पे कब्जा कर लिया। हुण मैं फैसला लांगा, इधर फैसले उस सच दे मुताबिक होंगे। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए। असल सूरमा वो है जो लड़े दीन के हेत, जो दीन दे खातिर, धर्म दे खातिर, अपने फर्जां ते खातिर विकारा नाल लड़े। असी ते इधर गवांडियां नाल लड़दे रहे। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे। आज तक जो सोच के साथ मैं जिंदगी जीता आया था, वो सारी सोच को मैं पुरजा पुरजा करके खत्म करने के लिए तैयार हूं। तब ना चाडे खेड, फिर भी मैं इस शरीर के उत्ते जो कब्जा कर लिया, उन्होंने सच दा वास हो गए, वो मैं छड्डन नूं तैयार नहीं हां। काका चूंड ना पिंजरा, जे तेरी बस दी गल है, बसे तू बसे है तो उड़ जाए, उड़ जा। क्यों? क्योंकि इधर मैं पहलवान आ गया हूं। जित पिंजरे इस शरीर दे विच ही वो रब सी, मेरे को बाहरली आंखों से देखने की जरूरत नहीं थी। जित पिंजरे मेरे अंदर ही रब वसया होया सी, मेरा शह वसे मांस ना तिदू खाए। हुण मेरा मन हरजन बन चुके, मेरे मन ने वो अंदर बैठे अमृत नूं प्रवान कर लिया। नानक अमृत मने माए। हुण मेरी विकारी सोच ने विष्टा छड़ के अमृत पीना शुरू कर दिता। मेरा मन हरजन बन गए। हे कां हुण तेरी कोई ए काबिलियत नहीं है कि तू मैनू हुण डिस्ट्रॉय कर सके। हुण मैं अपने जीवन दे विच अज तक जो मैं राजा बालक सी, नगरी काची सी, राजा बालक नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो, मैं दुष्टा नाल मोहब्बत कर बैठा सी। पर अज ए राजा एक सियाना बन चुके, ए हरजन बन चुके। हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। मेरा मन उस एक नाल एक मिक हो गया है। जदों मेरा मन और रब्बी मिलाप की अवस्था हासिल कर चुके, हुण ए विकारी कां साडा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकणगे। बाबा फरीद अज दे 3 श्लोक दे सेट दे विच टॉपिक दे विच सानू समझांदे पए ने, साडे जीवन दे विच जो चीज सानू डिस्ट्रॉय करदी है वो है विकार रूपी कां। उन्हां विकारां ने सानू जिंदगी दे विच हर जगह ते एक ज्ञान इंद्रे ते इहो जिहा अटैक किया। असी चंगा सोच नहीं पा रहे, चंगा बोल नहीं पा रहे, अपनी गलतियां नूं वेख नहीं पा रहे। इस करके असी अपने कम्मा करके पागीन हो गया। पर इतना ही होया, उस दोगलेपन ने ए दोए नैना मत छूहो मेरी मत नूं भी टच कर दिता है। फिर पिर नाल मिलाप किवें हो सकता सी? जदों उस पिर नाल मिलाप नहीं हो रहा सी, मैनूं रियलाइजेशन होया वो पति नाल मिलाप तां ही होएगा जे कां उड़े। इस करके कहता उड़ो ना कागा करे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे। जदों मैं अपने जीवन दे विच मैं उस राजा बालक वाली बिरती छड़ के हरजन बनिया, हुण मैं उन्हां विकारां दा सामना कीता। उन्हां विकारां दी हुण कोई कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो उस जगह ते डिस्ट्रॉय, उस जगह ते डिस्ट्रक्शन कर सकन जिधर सच दी विचारधारा, जिधर रब्बी विचारधारा, जिधर रब्बी गुण आ जान। फरीद साहब वो जिंदगी दे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी इन्हां 3 श्लोकां विच दर्शांदे पए ने। स्टार्ट होई सी जिहड़े तों आत्मक मौत मरदा पिया सी, एंड होंदा पिया सतगुर के जन्मे।
गवन मिटाया, मेरा एक नवा जन्म हो गया, इधर हुण आत्मक मौत मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकेगी। फरीद साहब की कीमती विचारधारा जो समझ आई है तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश की, होईयां गलतियां दी क्षमा। आप सब दे प्यार एकाग्रता का बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।